आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है, इसका हम देखेंगे। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। So this is the simple definition of genetics, is the study of heredity and variation. So this is the two basic terms which is associated with the study of genetics. So what is the heredity? It is the offspring resembles to their parent. Due to the heredity, offspring resembles to their parent. So that means character of parent are transferred or inherited to their offspring. So that process, that phenomena is the called heredity. That means the character is transferred from one generation to next generation. And the what is the variation? So all individuals of a species are not exactly similar. Obviously, the offspring is the similar to their parents, but if we see the individuals of a species, which is that individuals are not exactly similar or identical, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होगा, चाहे हाइट में हो या कलर में हो या बहुत सारे इस तरह से ट्रेट्स होते हैं जिसमें वेरिएशंस होंगे। तो ये दो बेसिक स्टडी है। सो देयर आर सम वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। जैसे स्किन कलर में हो सकता है, कोट कलर में हो सकता है, हाइट में हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट वेयर देयर इज अ वेरिएशन persist in the uh, individuals of a species. Now, if we go to the detail of the heredity and their the journey, so what are the basic mechanism of heredity? Inheritance कैसे होता है? ठीक है। तो in 1865 or 66, the mechanism or pattern of inheritance is given by Mendel. So called the Mendel's law of inheritance. So there are three laws of inheritance: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. So we will discuss these law in the uh, uh, new video called the Mendel's law of inheritance. But here the basic thing that the Mendel assumed that that inheritance occurs through a specific unit of heredity called unit factor. Called unit factor. So this is also called as Mendel's element or unit of heredity. So that unit factor is for the each character. ये हमेशा ध्यान रखना कि मेंडल ने जो कंसीडर किया था, कैरेक्टर क्या हुआ कि जो कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे हाइट है, उसका कलर है, तो जिससे उसने फ्लावर कलर लिया था, हाइट लिया था प्लांट का, या पोर्ट कलर लिया था, सो या शेप लिया था, सो दीज आर द कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर हैविंग द सम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो वो उसको बोलते हैं ट्रेट। सो दैट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट इन टू फॉर्म और मोर फॉर्म। Mendel's considered that there are two forms that is called the alleles for each unit factor. So a character like height, जैसे height है, height इसके दो होते हैं trait, tall and dwarf. तो हाइट का यूनिट फैक्टर के दो फॉर्म होंगे, एक टॉल के लिए और एक ड्वार्फ के लिए। कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से उसको एनोट किया गया था। तो एक बहुत ही इसका एजम्पशन था मेंडल्स का कि ये जो कैसे हो रहा है, क्या ऐसा एलिमेंट है, क्या ऐसा फैक्टर है जो इस हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के जैसे डोमिनेंस को या सेग्रीगेशन को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्रिएट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। सो उन्होंने किया कि दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड द यूनिट फैक्टर। नाउ एक्चुअली व्हाट इज द यूनिट फैक्टर? सो इन 1909 विलियम जॉनसन क्वाइंड द टर्म जीन। उन्होंने कहा कि यूनिट फैक्टर और कुछ नहीं है, क्या है वो? जीन है। उन्होंने नाम दिया जीन।
टू डिस्क्राइब द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने कहा कि ये फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, यही ट्रांसफर होता है फिजिकल रूप में, यही ट्रांसफर होता है जिससे उन्होंने कहा जीन। ध्यान रखना, यहाँ पर अभी कोई डीएनए और कोई भी डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं था। So that unit factor finally is called the gene. Now the genetics, the term genetics now arise when the term coined the gene. So genetics also is known as the study of gene. एक तो डेफिनेशन हमने शुरू में दिया था कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ heredity and variation. Now here is the when the gene term is discovered and coined, and the finding out there is a certain factor or element which is called the gene, which is responsible for this inheritance and further also variation. So the finally is the study of gene, so called the genetics. So William Bateson in 1905 coined the term genetics from the word gene. इन्होंने जीन टर्म से जेनेटिक्स टर्म को डेराइव किया था, उन्होंने क्वाइंट किया था इस टर्म को। तो जेनेटिक्स एक्चुअल में द स्टडी ऑफ जीन बोला जाता है। सो देयरफॉर जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। अब नेक्स्ट है कि जीन को कनेक्ट किया गया क्रोमोजोम से। धीरे धीरे ये देखा गया कि दैट इज कॉल्ड द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि जीन एक्चुअल में कुछ और नहीं है, क्रोमोजोम है या क्रोमोजोम के ऊपर होता है। तो किसने कहा था ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दिया था? वाल्टर एस सूटोन एंड थियोडोर बोवेरी ने 902 और 3 के आसपास इन्होंने ये देखना शुरू किया था। तो ये जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियोसिस बिहेव लाइक जीन, यानी जिस तरह से यूनिट फैक्टर और जीन का दो फॉर्म होता है डिप्लॉयड स्टेट में, फिर वो गैमीट के टाइम में वो सेपरेट होता है, उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। तो यही नेचर, यही बिहेवियर जब सूटोन और वेवेरी ने साइटोलॉजिकली इसको ये किया, देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि क्रोमोजोम कैरी द यूनिट ऑफ हेरेडिटी, यानी जीन। ये क्रोमोजोम ही है जिसके ऊपर जीन होता है, क्रोमोजोम एक्चुअल में ट्रांसफर होता है। तो उन्होंने एक न्यू थ्योरी दिया कॉल्ड द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोजोम ही ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो इसका काम था, ये साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे था। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसके पास नहीं था। हाँ, साइटोलॉजी उन्होंने देखा कि मियोसिस के टाइम में वो किस तरह से, तो मियोसिस के टाइम में किस तरह से क्रोमोजोम बिहेव कर रहा है, तो वो बिहेवियर किसके सिमिलर हुआ? जिस तरह से मेंडल ने जीन के बारे में या यूनिट फैक्टर के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक्चुअल में क्रोमोजोम ही ट्रांसफर हो रहा है, जिस और क्रोमोजोम क्या कैरी कर रहा है? जीन कैरी कर रहा है। उसके बाद इसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली जो कंफर्म किया उन्होंने वो किया थॉमस हंट मॉर्गन, और इस क्रोमोजोम थ्योरी को किया इन्होंने, सेक्स लिंक पर काम किया। तो इन्होंने एक्चुअल में बहुत एक्सपेरिमेंटली काम किया था ड्रोसोफिला पर, उनके ट्रेड पर। तो इसको नोबेल प्राइज भी इस बात के लिए मिला 1933 में, मेडिसिन में। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जीन को या क्रोमोजोम को किससे कनेक्ट किया गया? डीएनए से। कहा कि जीन है क्या, क्रोमोजोम है क्या, क्या है? तो डीएनए है। और फर्दर ये देखा गया कि एक्चुअल में डीएनए है जिसमें क्या होता है? जेनेटिक कैरेक्टर होता है, वही जेनेटिक मटेरियल है, वही दूसरे इसमें ट्रांसफर होता है। तो इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम हो या जीन हो, तो एक्चुअल में वो डीएनए है। तो डीएनए में ही वो जेनेटिक कैरेक्टर होता है। इसीलिए ये प्रूफ किया गया एक्सपेरिमेंटली कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि क्रोमोजोम अभी केवल क्या था कि फिजिकली पता था कि ये कुछ होता है डीएनए या जीन जिस क्रोमोजोम में, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्रोमोजोम या जीन है क्या, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि आरएनए है कि डीएनए है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तीन इस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक था ग्रिफिथ, जिन्होंने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 में किया। तो इन्होंने बताया एक एक्सपेरिमेंट करके, ऑसवाल्ड ओवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलीन मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, इन तीनों ने बताया कि नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और फाइनल जो कंफर्म
किया गया कि यही एक्चुअल में ट्रांसफर होता है, वो हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट इन 1952 में किया गया था। तो ये एक प्रोसेस चला। तो इसको हम डिटेल में एक न्यू स्लाइड में पढ़ेंगे, कॉल द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। एक न्यू वीडियो में इसको बना दूंगा, क्योंकि ये जो इसका एक्सपेरिमेंट है इसको डिटेल में समझना होगा कि क्या है। ठीक है, कि ग्रिफिथ ने कैसे क्या पता किया, ठीक है, ऑसवाल्ड ऑवरी और इसके ग्रुप ने क्या पता किया, और हार्सी चेस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि डीएनए ही ट्रांसफर होता है और यही जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि जीएनए क्या बना, डीएनए बना। अब डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पता चल गया, किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक 1953 में इसका एक मॉडल दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको पता है सबको कि इसके नोबेल प्राइज भी मिला था। सो यहाँ से द बिगिनिंग ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट हुआ। यहाँ से मोलिकुलर जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब ये मोलिकुलर लेवल पे जीन और चीजों का एनालिसिस होना शुरू हुआ यहाँ से। अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन कहाँ हो रहा है। एक नया, फिर साथ ही साथ एक न्यू डिस्कवरी स्टार्ट था, काम एक न्यू अप्रोच पर, कि इसमें म्यूटेशन भी होता है, क्रोमोजोम हो या जीन हो उसमें म्यूटेशन होता है। सो ये म्यूटेशन जो फर्स्ट डिस्कवर किया था ह्यूगो डू वेरीज ने 1901 में किया था। म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। म्यूटेशन यानी सडन चेंज, सडन चेंज इन कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि जो सडन चेंज इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में दिया था इन्होंने। बाद में बहुत और साइंटिस्ट आए, और फिर इन्होंने कहा कि ये जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। ये वेरिएशन क्यों है, मान लीजिए कि एक यूनिट फैक्टर, एक जो जीन था उसका जो दो फॉर्म बना या और भी फॉर्म बना जिसको एलील कहते हैं, तो वो एलील बना कैसे, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण वेरिएशन क्रिएट हुआ, यानी न्यू टाइप के जीन्स बने या एलील्स बने, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट हुआ। एक और कारण है जिसके कारण वेरिएशन होता है, कॉल द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। कि मान लिया जाए कि जैसे ए है और ए है, डिप्लॉयड स्टेट में क्या होगा, एक क्रोमोसोम पर यदि ए जीन है, दूसरे पे उसका दूसरा एलील है ए, और उसके बाद एक पर बी है, कैपिटल बी है, और दूसरे पे ए है, एलील, दो एलील है। तो इसका रिकॉम्बिनेशन यदि होगा तो ए के साथ, सॉरी बी होगा यहाँ पर, ये बी हुआ, जस्ट तो एक न्यू कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए के साथ स्मॉल भी बन सकता है, और स्मॉल ए के साथ कैपिटल वी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर हुआ। मान लीजिए कि पेरेंट में था ये, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स बना, सो दैट इज कॉल्ड द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील, कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। ये इसका कंसेप्ट मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हुआ था। ठीक है, कि वहां पे जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वहां पर पता चलता है कि रिकॉम्बिनेशन यानी न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील का कैरेक्टर का वहां पर अपीयरेंस होता था। जैसे कि मान लीजिए कि टॉल और ड्वार्फ हमने लिया, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन लिया, और उसके साथ रेड का भी कॉम्बिनेशन लिया, कि एक है टॉल एंड रेड और एक है ड्वार्फ एंड व्हाइट। तो जब इसको क्रॉस कराया गया तो दिखा कि कुछ ऐसे ऑफ स्प्रिंग आया जो कि टॉल था लेकिन व्हाइट था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी इसी को बोला रिकॉम्बिनेशन। ये टी, जो कैपिटल टी है वो स्मॉल आर के साथ कंबाइन कर गया, और ये तो चूंकि मेंडल ने जब ये डिस्कस किया था तो उस टाइम में उन्होंने कहा था कि ये सब अलग अलग होता है, टी अलग है, तो हर जीन उन्होंने कहा था कि अलग अलग क्रोमोजोम पर है। बहुत सिंप्लीफाई वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बाद में पता चला कि एक क्रोमोजोम पर बहुत सारे जीन होते हैं, तब वहां पर कैसे होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो द मैकेनिज्म इज द क्रॉसिंग ओवर, यानी उसमें कि डीएनए जैसे मान लीजिए एक जुड़ा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो एक पोर्शन जैसे यहाँ पर टी है और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो ये कैसे इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी ये वाला फ्रेगमेंट कट के इधर जुड़ जाएगा, ये वाला फ्रेगमेंट कट के इधर जुड़ जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, टी स्मॉल आर, और इधर
टी और कैपिटल आर। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन का हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रिकॉम्बिनेशन भी क्या कर रहा है, वेरिएशन को क्रिएट कर रहा है। तो दो बेसिक है, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन, जो वेरिएशन को क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ जेनेटिक्स दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है। वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो व्हाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट, हाउ द कैरेक्टर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो क्यों रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि हर पेरेंट या एक स्पेसीज के पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन एलील्स जीन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स होता है जो ट्रांसफर करता है अपने ऑफस्प्रिंग में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसीलिए, और ये कैसे इनहेरिटेंस होता है, तो लॉ मेंडल ऑफ लॉ ने बताया कि इस तरह से सेग्रीगेट होगा, इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और इस तरह से ट्रांसफर होगा। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काउजेज वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज। ठीक है, क्यों एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, क्योंकि एक तो म्यूटेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरा है, हालांकि म्यूटेशन का रेट बहुत ही कम होता है, बहुत, ठीक है, लेकिन उसके जितने म्यूटेशन के कारण जितने एलील्स बनते हैं उसके कारण जो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन आएगा और वो एक एक डिफरेंस दिखाएगा अपने डिफरेंट इंडिविजुअल से एक ही स्पेसीज के अंदर। तो वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो ये दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इससे मिलता है जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सब डिसिप्लिन्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सब डिसिप्लिन्स क्या क्या है। तो एक है क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ये चार बेसिक सब डिसिप्लिन है जेनेटिक्स के। तो इसके अलावा भी और है, लेकिन ये बेसिक चार सब डिसिप्लिन है जेनेटिक्स के। तो पहला है क्लासिकल जेनेटिक्स, यानी जो जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि हाउ जीन इज ट्रांसमिटेड, यानी स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन। तो ये किसने दिया था, इसका ज्यादातर जो बेस बना वो था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने देखा कि किस तरह से उसका क्या पैटर्न है, अ, जिसकी वजह से ये जीन ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। उसका एक सर्टेन लॉ है, सर्टेन रूल है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का सिंपल मीनिंग है कि द स्टडी ऑफ जीन, चाहे उसका स्ट्रक्चर या फंक्शन हो, इज द एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं जीन का, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं, कि जब हम जीन का मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो उसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी तक हम जितना सोच रहे थे या मेंडल ने जो किया था कि एक इंडिविजुअल में जीन का क्या है कॉम्बिनेशन, कैसे वो ट्रांसफर होगा, हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक पॉपुलेशन में भी जो जीन का फ्रीक्वेंसी है, उसके एलील का जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया कि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। और एक हार्डी विनवर प्रिंसिपल आया, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। यदि किसी चीज का फ्रीक्वेंसी रेसेसिव का या डोमिनेंस का जो भी है, तो इन्होंने एक दिया था पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। यदि पॉपुलेशन का जो इवोल्यूशन है वो कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रूल को फॉलो करेगा। यदि ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है। अदरवाइज यदि एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो, रेंडम मेटिंग हो, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कि पॉपुलेशन का ये फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला है वो कभी नहीं चेंज करता है। सो दैट इज कॉल्ड द हार्डी विनबर इक्वेशन, कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट रेसेसिव एलील का, डोमिनेंट एलील का, जैसे पी है डोमिनेंट एलील, क्यू है रेसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी, और दोनों का जो हेट्रोजाइगस बनता है वो है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस उस दोनों का मिलाकर ये पूरा फ्रीक्वेंसी है, उसका कैलकुलेशन है। तो ये हम सेपरेट में पढ़ेंगे, हार्डी विल्मर्स प्रिंसिपल जब हम पढ़ेंगे इसको। तो स्टडी ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के लेवल पे जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, ये हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। और चौथा है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स अफेक्टेड बाय मेनी एलील्स।
स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स अफेक्टेड बाय मेनी एलील्स एट डिफरेंट लोसाई एंड इन्वायरमेंट। अब होता क्या है कि बहुत सारा जो कैरेक्टर होता है वो बहुत सारे जीन को जो बहुत सारे एलील्स जो कि बहुत डिफरेंट लोसाई पे पड़ा होता है। जैसे अभी तक हम देखे थे कि टॉल और ड्वार्फ चलो डिप्लॉयड है तो एक यहाँ पर टी होगा, दूसरा एलील यहाँ पर होगा स्मॉल टी, ठीक है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन, लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारा एलील है कि टी है, फिर उसका T1 T2 T3 T4, यानी उसी तरह से जैसे हमारा स्किन कलर होता है, स्किन कलर जो होता है हमारा कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट पॉपुलेशन। यदि देखो कि उसमें एक ग्रेडियंट होता है, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये डार्क और केवल व्हाइट या फेयर, ये तुम नहीं बोल सकते हो। कोई थोड़ा ज्यादा डार्क है, कोई थोड़ा कम डार्क है, कोई थोड़ा ब्राउन है, थोड़ा ज्यादा ब्राउन है। तो तुम यदि स्किन कलर को देखो, इस तरीके से बहुत सारा चीज होता है, चाहे आई कलर देखो, तो उसमें तुम्हें जो मिलेगा जो ग्रेडियंट, जो कैरेक्टर का ग्रेडियंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो एक कॉन्टिन्यूस वे में मिलेगा। तो ये कैसे होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे एलील्स होते हैं डिफरेंट लोसाई पे, और उसके कॉम्बिनेशन कंबाइन इफेक्ट देता है इस कैरेक्टर को। तो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है कि कितना एलील है, और हर एलील का जो अपना अपना इफेक्ट है, उसका भी ग्रेडियंट, उसका भी ये होता है, जैसे डोमिनेंट का सबसे ज्यादा होगा, उससे बाद में उससे कम होगा, उसके बाद का जो होगा उससे कम होगा। तो इस तरह से जो एक क्वांटिटी उसका ही होता है। तो पहला तो है कि डिफरेंट एलील इसको डिसाइड करता है डिफरेंट लोकस पर उसके कैरेक्टर को, और ये इन्वायरमेंट से भी इफेक्टेड होता है, कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी इफेक्टेड होता है। तो इस ये पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में, वेरिएशन इन कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिक 4 सब डिसिप्लिन ऑफ जेनेटिक्स था। तो थैंक यू। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।